Everyone, I am Ketki Nayak. I welcome you all to Parul webinar. I am Assistant Professor with Parul Institute of Business Administration. I'd like to welcome you all to this wonderful platform of PU webinar. So today we are going to discuss on the topic of a role of language in communication. Before moving further, I'd like to welcome our principal, sir, for discussing the topic. Hand over to you, sir. Namaskar, Mr. Chitij and our faculty, Ketki Madam. We do meet always and discuss on so many topics, but today we have the privilege to listen to you on language because you have got a tremendous experience with the language, not only in radio, but in real life also. So, dear viewers, I am not going to take much time being the principal of BBA at Parul University. I know Mr. Chitij personally nicely, and we do discuss, we do work on certain things together on certain platforms also. I'm sure all of you will know him more apart from his caliber, what you have seen through radio or the stages. He is having a great academic inclination and he is always ready to help student community. So today we are going to focus on only one particular point, understanding about the language and the communication through a person who is now not only India famous, rather I must say with global presence. He is having certain initiatives which he will be sharing himself as well as Ketki Madam will be introducing. So I believe for all the viewers, this is going to be a little bit of game changer so far understanding about the communication is concerned. With this, I welcome Mr. Chitij and I hand over Ketki Madam for a detailed introduction about our today's guest and speaker. Thank you very much. Have a nice day. Thank you so much, sir. It gives me immense pleasure to welcome our guest of honor. Today we have with us our guest speaker, who's a versatile personality, Mr. Kshitij Banker, a well-known radio jockey. Mr. Kshitij Banker is a well-known celebrity. He is a former radio jockey, a freelancer, an artist, a fantastic singer, and performer. He is having a total work experience of more than 20 years in sectors like media, music, and freelancing. Sir is a former RJ with Radio Mirchi and currently is working as a freelancer. Sir has always believed in moving ahead with the times and experimenting with diverging ideas. Sir is very active on social media as well and has extensively used it in spreading awareness and promoting social, environmental, and educational issues. Sir has got a very strong foothold and experience of music, singing, and performing. He's a versatile singer and performer. He is professionally trained for Indian classical vocals and has also sung for Gujarati movies and has learned various musical instruments like guitar, keyboard, harmonica, and Western music by himself. Sir has performed at various parts of the nation, all across the nation, as well as abroad also. Sir has won various accolades and different various awards for his prominent work from various reputed organizations. So today we are glad to have him on this webinar where he will take our students and all of us through this webinar regarding the importance of the role of language in communication. So once again, a very warm welcome to you, Kshitij sir, and over to you, sir. Thank you so much, Ketki ma'am. Thank you so much, Shantanu sir, for this wonderful platform. And I've always looked forward to interact with students as much as possible. और आजकल ये social distancing और digital ज़माना है, तो it's good that we are connecting at least virtually and digitally. So good morning, my dear friends. My name is Kshitij, and I'm going to present a very unique webinar today. And it's about language, it's about communication.
कोई ये सोचेगा कि कम्युनिकेशन के बारे में हमें क्या समझाना या क्या सिखाना, ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं, बहुत सही बात है। पर आज उसी में से कुछ जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है, जो अब तक सीखा है, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करने वाला हूँ। I want this to be more of a knowledge sharing session. So if you have any questions at any point, just feel free to send them across. I will stop whatever I'm doing the presentation and I'll answer your question first. अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये सवाल बाद में भूल जाऊंगा या भूल जाऊंगी तो otherwise I will take questions towards the end of my presentation. बहुत मेहनत से मैंने पीपीटी कल रात को बैठ के बनाया है, तो आई होप कि पीपीटी अच्छा बना होगा, क्योंकि अब तक प्रेजेंटेशंस बनाने की ज्यादा मुझे जरूरत नहीं पड़ी है। बट यू नो, व्हेन वी टॉक अबाउट लैंग्वेज, आई विल फर्स्ट टेल यू अबाउट माय कैंपेन विच इज नोन एज वट थी गुजराती, जिसके साथ ये पूरी जो बात है वो शुरू हुई थी। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? आ गया? Where are we? Okay, I want the next slide. I can't see the next slide. Yeah. Nilay sir? Okay, in the meantime, I'm checking Facebook, and there are people who are writing their names on this live session. Okay, good. ठीक है. So at least we know that there are people watching. Nice. Yes, sir. Lot of people. Very nice. All right. So you know, this is a true story or true incident that had happened with me. कुछ सालों पहले की ये बात है। मैं कहीं एक स्कूल के पास खड़ा हुआ था और वहां पर पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आए थे और पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कुछ बातचीत हो रही थी विच आई कुड ओवरहियर। सो पेरेंट्स को बच्चों ने ऐसा कहा कि स्कूल में आज पीटीए, पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन का मीटिंग है, पर आप मत आना, हम संभाल लेंगे। तो पेरेंट्स ने पूछा ऐसा क्यों, हम क्यों नहीं आए, पेरेंट्स की अगर मीटिंग है तो हमें आना चाहिए। तो बच्चों ने कहा नहीं, आपको इंग्लिश नहीं आती ना, तो आप रहने दीजिए, हम संभाल लेंगे। तो इट केम टू मी एज अ शॉक। मुझे एक तो हंसी भी आई और सामने गुस्सा भी आया, और पेरेंट्स ने हाँ भी बोल दिया कि हाँ ठीक है, अब हमको नहीं आती इंग्लिश इतनी अच्छी, तो हम नहीं जाएंगे। यू नो, यही सिचुएशन का रिवर्स भी होता है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत दुख होता है कि हमारे बच्चों को इंग्लिश में बोलना क्यों नहीं आता। आई एम श्योर यू हैव ऑब्जर्व दिस। इफ यू गो टू समवन्स हाउस और अगर उनका कोई छोटा बच्चा है तो वो बोलेंगे चल बेटा आजा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोल के सुना, है ना, या तो बाबा ब्लैक शिप बोल के सुनाओ। कभी वो अपनी वर्नैक्युलर लैंग्वेज या हिंदी की कोई पोएम, कोई कविता या कोई यू नो किड्स सॉन्ग वो नहीं गाएंगे, इंग्लिश राइम्स ही याद करवाएंगे। सो दिस स्टार्टेड अ थॉट इन माय माइंड कि ऐसा क्यों होता है। मैं मानता हूं कि इंग्लिश इज एन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ गुड लैंग्वेज, उसमें कोई देयर आर नो टू वेज अबाउट इट कि हाँ भाई इंग्लिश तो बोलनी है, सीखनी है, पढ़नी है। पर ऐसा क्यों होता है कि इंग्लिश को हमने एक ऊपर दर्जा दे दिया? व्हाई इज इट ऑलवेज कंसिडर्ड दैट समवन हु स्पीक्स इन इंग्लिश इज मोर इंटेलिजेंट? तो ये जो एक विचार है, ये जो एक मानसिकता है, उसको हटाने की कोशिश करने की मुझे लगता है जरूरत है। आई एम नॉट सेइंग दैट एनी लैंग्वेज इज गुड और बैड, ऑल आई एम सेइंग इज दैट ऑल लैंग्वेजेस आर गुड व्हेन यू वांट टू कम्युनिकेट। सभी लैंग्वेजेस इक्वल है, उसमें कोई एक ऊपर या कोई एक नीचे नहीं है। इसीलिए अपनी भाषा के प्रति हमको गर्व महसूस हो, इसीलिए वट थी गुजराती ये कैंपेन की शुरुआत की। दिस वाज द व्हाई। उसके बाद इफ आई रियलाइज दैट इफ यू वांट टू रीच आउट टू पीपल ऑफ आवर जनरेशन, जो हमारे जनरेशन के लोग हैं, जो अभी आप फेसबुक पे ये देख रहे हैं या मोबाइल फोन से देख रहे हैं, हमारी जनरेशन तक पहुंचने के लिए कोई भी कैंपेन या कोई भी बात को सोशल मीडिया के द्वारा ही ले जाना चाहिए, ये मुझे रियलाइज हुआ। सो वट थी गुजराती campaign initially started on my Facebook page, on social media, on my Instagram, and then slowly we started doing concerts. तो हमको ऐसा लगा कि रॉक कॉन्सर्ट्स ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रॉपर लाइटिंग, साउंड, ड्रम्स, गिटार, कीबोर्ड
बहुत अच्छे गाने हो, पर उसकी लैंग्वेज वर्नाक्युलर हो, मतलब उसकी लैंग्वेज गुजराती हो. सो वटथी गुजराती केम इनटू बीइंग इन दैट वे. काफी सारे उसके बाद कॉन्सर्ट्स कर चुके हैं, काफी सारी जगह पे टॉक्स दे चुके हैं, नेशनली इंटरनेशनली. और अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है. वटथी गुजराती लूजली मीन्स स्वैग ऑफ बीइंग अ गुजराती. Now, I understand that there might be a lot of students who might not belong to Gujarat, पर मैं गुजराती और वटथी गुजराती की बात इसलिए करता हूं क्योंकि मैं गुजराती हूं. But right now I'm trying to talk in Hindi and English so that the idea is sent across. Here I'm not promoting Gujarati as a language, but here I am promoting the idea of being vernacular. Can we go to the next slide, please? See, it is very, very basic that species are communicating. ठीक है. जैसे एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं, उनके बीच में भी कम्युनिकेशन होता है, पर ह्यूमंस ने वो कम्युनिकेशन को एक स्टेप ऊपर ले गए हैं. हम लोग सिर्फ जेस्चर्स से नहीं, हम लोग बोल के भी बात करते हैं. देयर इज वर्बल कम्युनिकेशन, और वो कम्युनिकेशन का एक स्टेप ऊपर है रिटन कम्युनिकेशन, जो सिर्फ इंसान कर सकते हैं, बाकी और कोई स्पीशीज नहीं कर सकती. रिटन कम्युनिकेशन नया नहीं है. हायरोग्लिफ्स की अगर आपने ये टर्म सुना है, हायरोग्लिफ्स, या अगर आपने मैन्यूस्क्रिप्ट सुना है या केव पेंटिंग सुना है, तो वो भी सब एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है. जब से ह्यूमन स्पीशीज है तब के, आज से हजारों साल पहले की भी केव पेंटिंग्स हमें मिल चुके हैं. पहले ये जो कम्युनिकेशन का जो मोड था वो केव की दीवारों पे होता था, फिर धीरे धीरे पेड़ के बार्क पे होने लगा, पत्तों पे होने लगा, उसके बाद मेटल पे होने लगा, एंड मच लेटर वी डिस्कवर्ड पेपर, एंड देन बुक्स स्टार्टेड गेटिंग प्रिंटेड. और ये पूरा एक क्या कहते हैं, ये उसकी हिस्ट्री है. दैट इज हाउ इट हैज हैपेंड. कम्युनिकेशन कैन बी वर्बल एंड नॉन वर्बल, एंड ह्यूमंस आर डेल्विंग विथ बोथ वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. पर ये जो कम्युनिकेशन है उसके बेसिस में आती है एक चीज जिसका नाम है लैंग्वेज. अब ये लैंग्वेज जो शब्द है, दैट हैज ओरिजिनेटेड समवेयर इन द 12th और 11th century from a Latin word called lingua. Lingua means the tongue. So जो चीज टंग से होती है उसे लैंग्वेज, लिंग्वाज करके फिर लैंग्वेज ये शब्द आ गया जो आज हम यूज करते हैं. एनी आइडिया के कितने, चलिए ये तो वन वे सॉर्ट ऑफ है, सो आई एम नॉट गोना आस्क यू टू गिव मी एन आंसर. But you know, in the world, it is said that there are more than 6,500 languages. In India, we have official 22 languages. ये official figures हैं. But if we talk about India, जो अगर अलग-अलग dialects की हम बात करें, तो वो संख्या हजारों में जाती है. Next slide, please. भले ही पूरी दुनिया में हम ऐसा समझते हैं कि 6,500 लैंग्वेजेस हैं, पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज होती है इंग्लिश. इट इज प्रोवन, एंड दिस इज अ विकिपीडिया चार्ट दैट आई हैव यूज्ड इन द प्रेजेंटेशन. एज यू कैन सी, द नंबर ऑफ स्पीकर्स इन द वर्ल्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीकर्स इन द वर्ल्ड आर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. बट इफ यू सी, वेरी क्लोज कम्स मैंडरिन और चाइनीज, जो उससे बहुत छोटे मात्रा में कम है. इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज स्टडी करने लायक है. जो सबसे ज्यादा लोग इंग्लिश बोल रहे हैं वो अपनी सेकंड लैंग्वेज को बोल रहे हैं. सो देयर फर्स्ट लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश. जो हम ऐसा समझते हैं कि इंग्लिश बोलने वाले दुनिया में सबसे ज्यादा है, वो हैं, पर वो सबों की लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज है. द फर्स्ट लैंग्वेज ऑलवेज इज योर मदर टंग, इन व्हाट यू आर रेज्ड, इन द फैमिली दैट यू हैव बीन बोर्न. सो इंग्लिश भले ही नंबर 1 आता है बोले जाने में, बट इफ यू सी वेरी क्लोजली यहां पर सेकेंड लैंग्वेज में अगर आप देखें तो इंग्लिश उसके पीछे आ जाता है. चाइनीज इज द फर्स्ट नंबर इन फर्स्ट लैंग्वेज स्पोकन. हमारे लिए ये गर्व की बात है कि टॉप 3 में हिंदी भी आती है. ये यू नो व्हाई दिस हैपेंस इज बिकॉज लाइक आई वाज सेइंग, हमारी जितनी भी भाषाएं हैं वो हर एक भाषा में अलग अलग प्रकार की बोली है. फॉर एग्जाम्पल, हिंदी में भोजपुरी एक अलग पूरा वो है, बुंदेलखंडी एक अलग होता है,
नागपुर के साइड अगर आप जाओ तो वहां की हिंदी अलग होती है, राजस्थानी में हिंदी अलग होती है, गुजरात में फॉर एग्जाम्पल उत्तर गुजरातनी बोली एकदम अलग છે, મધ્ય ગુજરાતનું ગુજરાતી અલગ છે, સાઉથ ગુજરાતનું ગુજરાતી અલગ છે, કાઠિયાવાડી અલગ છે, કચ્છી અલગ છે. So even in a state like Gujarat, if you go to different regions, બાર ગામે બોલી બદલાય એવું કહેવાય છે. If you go to different regions, you will encounter different use of languages. And by that regard, if we see in India, we have about 19,500, almost 20,000 different dialects and different बोली के प्रकार. अब कोई ऐसा कहेगा कि इतनी सारी अगर बोली है तो उसमें से 5-6 बोली अगर चली भी जाती है तो क्या फर्क पड़ता है, राइट? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अभी हम एक ऐसे मोड पे आके खड़े हैं एज अ सिविलाइजेशन दैट देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस विच आर गोइंग एक्सटिंक्ट. अगर यूएन का सही माने तो हर 15 दिन में दुनिया में से एक लैंग्वेज गायब हो जाती है. मैंने ये एग्जाम्पल बहुत सारी जगहों पर यूज किया है एंड आई एम गोना यूज इट अगेन. नियर ग्रीस, वहां पर एक आइलैंड है छोटा सा जिसका नाम है एवियन, और ये जो आइलैंड है वहां की जो बोली है वो विशल के द्वारा बोली जाती है. सो दे कम्युनिकेट यूजिंग विशल्स, द साउंड ऑफ विसल. द रीजन वाई दे यूज इट इज बिकॉज द आइलैंड इज ह्यूज, और एक जगह से दूसरी जगह अगर, तो पहले के जमाने में जब ये लैंग्वेज डेवलप हुई थी तब फोन्स नहीं थे. सो इफ दे हैव टू कम्युनिकेट इन ह्यूज डिस्टेंस तो चिल्ला के बात नहीं कर सकते, विशल दूर तक सुनाई देती है. तो उन्होंने एक दूसरे से बात करने का तरीका विशल से शुरू किया. ये ग्रीस के एक आइलैंड की बात है. अब हुआ ये है 2019-2018 में ये जो विशल से जो बोलने वाले लोग हैं वो महज 30 या 35 बचे. वेरी सून आफ्टर 20 years, मे बी 15 years, ये जो भाषा है वो लुप्त हो जाएगी, ये भाषा एक्सटिंक्ट हो जाएगी. और ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी बोलियां हैं जो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही हैं. तो कोई ये सवाल पूछेगा कि अगर एक्सटिंक्ट हो रही है तो उससे हमें क्या? ये तो नेचुरल फॉर्म ऑफ एवोल्यूशन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, चार्ल्स डार्विन की थियरी है, जिन्होंने ऐसा कहा था कि भाई जो फिट है वही टिकेगा, बाकी के लोग निकल जाएंगे. डायनासोर्स हैं वो नहीं टिक सके तो वो निकल गए, वो एक्सटिंक्ट हो गए, और बहुत सारी स्पीशीज ऐसे ही एक्सटिंक्ट हो गई. तो उससे दुनिया को क्या फर्क पड़ेगा, हमने दूसरी भाषाएं अपना ली है. ये आर्ग्यूमेंट के तौर पे 100% सही है, बट इफ यू think about it and understand, a language is not only for the mode of communication. A language also describes your culture, your roots, and your art. अगर फॉर एग्जाम्पल सोच लीजिए कि अगर हमने टाइमली संस्कृत को अडेप्ट नहीं किया होता, संस्कृत को समझा नहीं होता, और संस्कृत को अगर ट्रांसलेट नहीं किया होता, तो जितने भी हमारे पहले के जो ग्रंथ हैं या वेद है या पुराण है वो अभी हमारे पास होते ही नहीं. दिस सिचुएशन हैज ऑलरेडी अराइज्ड एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस. फॉर एग्जाम्पल द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो हमारा एक क्या कहते हैं, एक भूतकाल है. हमें पता है कि भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था, पर वो लोगों के साथ ऐसा तो क्या हुआ कि वो पूरा सिविलाइजेशन एक्सटिंक्ट हो गया, इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है. क्यों? क्योंकि उन्होंने जितना भी लिखा था वो हायरोग्लिफ्स में लिखा है, और वो अभी तक हम डिकोड नहीं कर पाए हैं. वी हैव नॉट येट बीन एबल टू डिसाइफर व्हाट दे हैव रिटन. सो हमें ये पता था कि कुछ लोग यहां पर रहते थे, पर वो लोग क्या करते थे या वो हमें क्या बताना चाहते थे वो अभी तक हम नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि हमें उनकी भाषा नहीं पता है, हमें उनकी लिपि, जो उनकी स्क्रिप्ट है, वो हम नहीं समझ पाए. एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद द एक्सटिंक्शन ऑफ लैंग्वेजेस. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So like the title is self-explanatory, there are 600 potentially endangered languages in India, and each dead language takes away a culture system. एक बहुत बड़े पोएट हो चुके हैं होमर, अगर आपने कहीं नाम सुना है, नहीं सुना है तो आप क्या कहते हैं, आप गूगल कर सकते हैं. उन्होंने बड़े बड़े एपिक्स लिखे हैं, होमर्स इलियाड जिसे कहते हैं या दी ओडिसी जिसे कहते हैं. वो इसीलिए बच पाया, वो ओरली उन्होंने डिस्क्राइब किया था, वो इसीलिए बच पाया क्योंकि किसी ने उसको टाइमली ट्रांसलेट कर दिया. अगर वो ट्रांसलेट नहीं करते तो वो जो एक लिटरेचर का इतना मास्टरपीस था वो हम तक पहुंच नहीं पाता.
हर एक सिविलाइजेशन में ओरल स्टोरीज होती है। कितनी सारी स्टोरीज ऐसी हैं जो हमें हमारे दादा ने या दादी ने सुनाई है, वो कहीं पे लिखी नहीं है, वो हमारे दिमाग में है। हम भी शायद हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन को वही कहानियां सुनाएंगे, पर अगर वो भाषा चली जाती है तो वो कहानियां भी चली जाएंगी, वो गाने भी चले जाएंगे, वो कविताएं भी चली जाएंगी, वो लिटरेचर चला जाएगा, वो हमारे जो रूट्स है, हमारी जो पहचान है, वो चली जाएगी। एंड दैट इज वाई अ लॉट ऑफ पीपल आर कंसर्न्ड दैट द लैंग्वेज शुड बी प्रिजर्व्ड। अच्छा, कुछ लोग ये भी आर्ग्यूमेंट करते हैं कि ये ह्यूमन हेरिटेज है लैंग्वेज, तो पर अगर हम उसे ट्रांसलेट कर दे तो फेयर इनफ, ट्रांसलेट हो सकता है, बट हर एक चीज लिटरली ट्रांसलेट नहीं हो सकती क्योंकि उसका भावानुवाद नहीं होता है। टू गिव यू एन एग्जांपल, गुजराती में कहते हैं 12 वर्षे बावो बोल्यो। इफ आई ट्रांसलेट दैट टू इंग्लिश, विच मीन्स आफ्टर 12 years द मंक स्पोक, बट इट इज नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी में कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, राइट? उसका इंग्लिश क्या होगा? दैट द ground is not straight, so the person cannot dance. But it will not fit the context. You can translate it, but you cannot fit it in context. And that is why translation may work, but not always. Can I have the next slide, please? देखिए, हमारी जितनी भी विजडम है, हमारी जो संस्कृति की विजडम है, वो हमारे एल्डर्स से आई है, और इसीलिए हम तक पहुंच सकी है क्योंकि हम वो भाषा को समझते हैं या कम से कम उसे ट्रांसलेट कर पाएंगे। ये जो विजडम की मैं बात करता हूं, इफ यू अंडरस्टैंड साइंस की अगर बात करें, तो आई थिंक इन द 14th century या 12th century ह्यूमन बीइंग्स वर एबल टू डिसाइड दैट द अर्थ इज राउंड। तब तक तो हमको पता ही नहीं था कि अर्थ राउंड है कि नहीं है, फ्लैट है, क्या है, किसी को कुछ नहीं पता था। हम ऐसा सोचते थे कि सन हमारे इर्द गिर्द घूमता है। फिर गैलीलियो ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है भाई, हम सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। ये सब हमें बहुत बहुत बाद में पता चला, आफ्टर स्टडीइंग, आफ्टर एस्ट्रोनॉमी एंड आफ्टर टेलीस्कोप एंड मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेशंस एंड ऑल ऑफ दैट। पर हमारी भाषा में जियोग्राफी को क्या कहते हैं पता है? हिंदी में और गुजराती में जियोग्राफी को कहते हैं भूगोल। हमें तो पहले से ही पता था कि भू मतलब दी अर्थ, प्लैनेट, અને એ ગોળ છે તો આપણને પહેલેથી ખબર હતી। આ લોકોને 14મી સદીમાં ખબર પડી। ये विजडम हम तक इसीलिए पहुंच पाया है क्योंकि ये भाषा अभी तक हमने बचा के रखी। अगर हमें भाषा नहीं पता होती तो भूगोल हमें पता ही नहीं चलता, एंड वी वुड हैव टू रिलाई ऑन देम इन द 14th century, जो हमें पहले से ही पता था कि भाई अर्थ राउंड होती है। दिस इज अ ब्रीफ एनालिसिस डन बाय यूनेस्को व्हिच सेज दैट इन द एंटायर वर्ल्ड देयर आर 57% लैंग्वेजेस व्हिच आर safe. Rest 43% languages have the potential of going extinct very soon. ये मेरा कैलकुलेशन नहीं है, ये यूनेस्को का कैलकुलेशन है। और जैसा मैंने कहा कि बिकॉज इट इज अबाउट विजडम, इट इज अबाउट व्हाट वी लर्न। जो भी भाषा है वो हमें हमारे रूट्स के साथ जोड़े रखती है, वो हमें हमारा कल्चर बताती है, इसीलिए वो भाषा को बचाए रखना जरूरी है किसी भी फॉर्म में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसा मैंने कहा कि माना कि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश को सीखना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए। पर जैसा हमने आगे की एक स्लाइड में देखा था, इंग्लिश इज स्टिल द मोस्ट स्पोकन सेकेंड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। भले ही दुनिया में इंग्लिश एक्सेप्ट हो चुका है, but still there are a lot of countries, lot of places where English does not or would not work. For example, Japan, for example, Germany, for example, China. ये सभी बहुत एडवांस्ड कंट्रीज हैं in their own right. Japan is quite advanced technologically, Germany is quite advanced. So ये एक जो मानसिकता है कि इंग्लिश मतलब एडवांस्ड, वो यहीं पे गलत साबित होती है। ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करने वाले चाइनीज हैं, वो लोग बहुत कम इंग्लिश में बात करते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में अगर आप जाओगे तो वहां पर भी लोग अपनी भाषा में बात करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। बट इन इंडिया परहैप्स मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमेशा ऐसी चीजों से अट्रैक्शन रहा है जो हमारी ना हो। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, अरे वहां पे घूमने जाओ, आपको लगेगा ही कि नहीं आप इंडिया में हो। ये बहुत कॉमन जोक है। अरे क्यों नहीं लगेगा भाई, हम इंडिया में। हमारी जो चीज होती है उसे हम हमेशा थोड़ा सा नीचा ही समझते हैं। वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली गुजराती में क्या है कि पारका भाणे मोटो लाडू।
दूसरे का टीवी और दूसरे की बीवी हमेशा और अच्छी लगती है, बट बट जोक्स अपार्ट, ये शायद हमारे कॉलोनियल हैंगओवर की वजह से भी है. व्हेन द ब्रिटिश यूज्ड टू रूल ओवर इंडिया, दैट लास्टेड फॉर अबाउट 200 years, 190 years टू बी प्रिसाइज. तो वो टाइम में वो लोगों ने क्या किया कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम थी उसको नीचा दिखाने की कोशिश की. कह रहे ये क्या है, ये मदारियों का देश है, ये अंग्रेज हमारे लिए बोलते थे. और उसके साथ साथ वो लोगों ने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स एस्टैब्लिश की, इसीलिए नहीं कि हमको नॉलेज मिले, इसीलिए ताकि वो कुछ ऐसे लोग तैयार कर सके जो उनके लिए क्लार्क का या अकाउंटेंट का या ऐसा छोटा मोटा काम कर सके. विद दिस व्हाट हैपेंड, जिन लोगों को उन्होंने एजुकेट किया था उनको ये नौकरी देने लगे, तो वो ऑटोमेटिकली उनके हाव भाव, उनका जो रहन सहन था वो चेंज हो गया. एंड दैट इज हाउ पीपल स्टार्टेड लुकिंग अप. ये शायद तब से ये शुरू हुआ कि अच्छा इंग्लिश बोलता है, अरे वाह वाह वाह. तो ये जो अंग्रेजों के टाइम पे जो मानसिकता थी वो अभी भी हमारे अंदर रह गई है, और इसलिए अभी भी हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो वो ज्यादा मॉडर्न है, वो ज्यादा एक्सपर्ट है, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है. और जो इंग्लिश में बात नहीं कर सकता वो चाहे भले कुछ भी कर ले, वो गंवार है, डफोड़ है ना, इंग्लिश नहीं आवड़. ऐसा हमने बहुत सारी बार हमारे कॉमन कॉन्वर्सेशंस में भी सुना है. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इट डज नॉट मैटर. अगर आप कोई भी बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी देखेंगे, देयर विल बी पीपल, इंटरनेशनल लीडर्स हु डोंट टॉक इन इंग्लिश, they will talk in their language and the translator will. चाहे वो यूएन की भी सभा हो, वहां पर भी लोग आके अपनी भाषा में बात करते हैं और उसमें कुछ भी बुरा नहीं है. 1983 ये फिल्म आ रही है रणवीर की, जहां पर हमने पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था. और हमने जब पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था तब हमारे कप्तान थे कपिल देव, और जब उन्हें कैप्टन बनाने वाले थे तब ये, दिस इज अ ट्रू स्टोरी व्हिच हैज हैपेंड विद कपिल देव एंड ही आल्सो स्पीक्स अबाउट दिस वेरी ऑफन. तो उन्होंने यही कहा था कि जब मुझे कैप्टन बनाने का था तब किसी ने ऐसी कमेंट की थी कि अरे कपिल को कहाँ कैप्टन बना रहे हो, उसको तो इंग्लिश बोलना भी नहीं आता. तो कपिल देव ने सुन लिया और कहा कि भाई मुझे वहां पे ऑक्सफोर्ड की एग्जाम लिखने नहीं जाना है, मुझे वहां पे क्रिकेट खेलने जाना है. एंड इफ वी विन द वर्ल्ड कप, इट डज नॉट मैटर इफ वी कैन स्पीक इन इंग्लिश और नॉट, वी हैव वन द वर्ल्ड कप. बात वहीं खत्म हो जाती है. सो दैट इज व्हाट मैटर्स. अगर आप इंग्लिश में बोल सकते हैं अच्छे से, वेरी गुड, फाइन, फेयर इनफ, नो प्रॉब्लम. पर नहीं बोल सकते, डोंट गेट डिसहार्टेड, डोंट गेट डिस्करेज्ड, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये बहुत टाइम से चल रहा है और नाउ इट इज ऑफिशियल कि हमारे यहां पर एक अभी तो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि इंटरनेशनल मीडियम की स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ. तो चाहे उसको जो भी उसके घर की भाषा है, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, बंगाली हो, गुजराती हो, राजस्थानी हो, कुछ भी हो, उसमें भले बोलना आता है या नहीं आता है, डजंट मैटर. फ्रेंच में बोलना आना चाहिए. અમારો છોકરો તો જર્મન શીખે છે, અલા પણ અહીંયા રહેવાનું ગુજરાતમાં જર્મન અત્યારથી કેમ શીખવાડો છો? See, a language is a skill. Anyone can learn it at any point in life. उसका जरूरी नहीं है कि बचपन में ही तुम उस पर ठूसो. यूनेस्को ने बहुत अभ्यास करने के बाद ये ऑफिशियली बोला है कि बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ने दो. लेट द चिल्ड्रन लर्न इन देयर मदर टंग, एस्पेशली द प्राइमरी एजुकेशन. जब तक वो 5th में, 6th में, 7th तक नहीं आता है तब तक उसको उसकी मातृभाषा में पढ़ाओ. आप सिंपल लॉजिक समझिए. होता ये है कि फॉर अ गुजराती हाउस होल्ड फॉर एग्जाम्पल, वो कुछ कोई भी टर्म्स है उसके लिए अलग टर्म्स यूज करते हैं. बच्चा स्कूल में जाके अलग टर्म्स सुन रहा है. इनफैक्ट आई हैव हर्ड ऑफ स्कूल्स जहां पर अगर आप इंग्लिश में बात नहीं करते हो तो फाइन भरना पड़ता है. अरे भाई मेरी मातृभाषा में मैं बात करूं, उसके लिए मैं तुम्हें फाइन क्यों? पर ये दिस इज ऑल अबाउट द मेंटेलिटी. सो यूनेस्को ऑफिशियली सेड कि भाई प्लीज बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन उनकी नेटिव लैंग्वेज में दीजिए, तभी जाके वो अच्छे से पढ़ पाएंगे. बाकी की हर एक लैंग्वेज तो बाद में जाके सीखने ही वाले हैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें, राइट? सो नाउ आई थिंक लास्ट ईयर 2 years बैक गुजरात गवर्नमेंट ऑल्सो सेड कि भाई हम लोग गुजराती को कंपलसरी बना रहे हैं एटलीस्ट फॉर प्राइमरी एजुकेशन. उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज, भले इंटरनेशनल हो या कुछ भी हो, आप गुजराती तो आपको सिखाना पड़ेगा गुजरात में. बाकी के स्टेट्स में भी ऐसा ही होगा, आई एम श्योर. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So I talk about Gujarati because
because I'm a Gujarati, but I'm sure a lot of languages are going through this recession. मैं ऐसा समझता हूँ कि किसी भी भाषा के साथ शर्म नहीं होनी चाहिए कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है तो उसमें मुझे मुझे शर्म नहीं आनी चाहिए, मुझे मेरी भाषा ही आती है, तो दैट्स ऑल राइट. इनफैक्ट अगर कोई अंग्रेजी ढंग से नहीं बोल पाता है उसका मतलब ये है कि कम से कम वो अपनी मातृभाषा तो ठीक से बोल रहा है. और इंग्लिश इज इक्वल टू इंटेलिजेंस, ये कंप्लीटली गलत बात है. आज तक के दुनिया के जितने भी आप ब्रिलियंट ब्रेन्स कह सकते हैं, चाहे आइजैक न्यूटन हो, श्रीनिवास रामानुजन हो, अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, सर एपीजे अब्दुल कलाम हो, ये जितने भी लोग मैं अभी कह रहा हूं, एंड आई एम श्योर द लिस्ट इज एंडलेस, दे हैव ऑल स्टडीड इन देयर लोकल मीडियम स्कूल्स. कोई इंटरनेशनल मीडियम स्कूल में नहीं गया था, कोई इंग्लिश मीडियम में जाके नहीं पढ़ा था, फिर भी उन्होंने जो करना था वो किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्रेन्स. सो लैंग्वेज प्लेस ओनली अ वेरी स्मॉल रोल. It is not the most important thing if you want to progress in life. So don't worry if you don't know proper English. उससे इंटेलिजेंस का या उससे आपका जो हुनर है उससे कोई लेना देना नहीं है. सभी भाषाएं सीखिए, पर कोई और एक भाषा को डिस्ट्रॉय मत कीजिए. मैं हमेशा ये कहता हूं कि whenever I have done talks और सेमिनार्स में हमेशा कहता हूं कि ये कोई कंपटीशन नहीं है. इट इज नॉट अ कॉम्पिटिशन विच सेज कि भाई ये भाषा ज्यादा अच्छी है और ये भाषा अच्छी नहीं है. इट इज वेरी सिंपल व्हेन वी से दैट जस्ट रिस्पेक्ट योर ओन लैंग्वेज एंड देन यू लर्न इंग्लिश. इंग्लिश इज अ वेरी गुड लैंग्वेज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज नो प्रॉब्लम विथ इंग्लिश. इनफैक्ट इंग्लिश का जो सबसे बड़ा गुण वो है, और इंग्लिश इसलिए ज्यादा सालों तक टिकेगी, वो ये है कि इंग्लिश एक रिसेप्टिव लैंग्वेज है. मतलब आज अगर संस्कृत भाषा में आप कोई शब्द जोड़ना चाहे तो वो नहीं जोड़ पाएंगे, पर इंग्लिश हर साल नए नए शब्द इंक्लूड करता जाता है. एवरी ईयर द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी टेक्स वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस जो ज्यादा यूज हुए हैं एंड दे स्टार्ट यूजिंग इट इन इंग्लिश. सो इंग्लिश अपने आप को अपग्रेड करता रहता है. ये इंग्लिश का एक बहुत अच्छा गुणधर्म है, एंड दैट इज वाई ये जो भाषा है वो बहुत लंबे तक चलेगी. आज की तारीख में भी इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो अलग अलग ओरिजिन से आए हैं. कुछ इंडियन वर्ड्स हैं, कुछ हिंदी, जैसे शैम्पू. बहुत कम लोगों को पता है कि शैम्पू का ओरिजिन इंडियन वर्ड से है. कैसे पता है? जब हम तेल मालिश करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? चंपी. चंपी में से चंपू हुआ और चंपू में से शैम्पू हुआ. सो शैम्पू ओरिजिनली इज एन इंडियन वर्ड, बट इंग्लिश ने उसे अपना बना लिया, राइट? सो ये इंग्लिश भाषा की एक कैरेक्टरिस्टिक है और इसी वजह से ये भाषा बहुत लंबी चलेगी. सो इंग्लिश इज अ वेरी गुड लैंग्वेज. वी हैव टू लर्न इट, वी हैव टू यूज इट, बिकॉज हमें दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना है. पर हम इंग्लिश अगर सीखते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी भाषा छोड़ देते हैं, राइट? अगर आपको कोई आंटी अच्छी लगती है तो उसका मतलब नहीं है कि आप आंटी के घर जाओगे. मम्मी के साथ तो रहना ही है, फिर आंटी आके रहती है तो फिर वो अलग बात है, वो घर का इंटरनल मैटर है. वी विल नॉट डिस्कस दैट हियर. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट this is the tagline of my campaign, which says कि अंग्रेजी भले सारू છે પણ ગુજરાતી મારું છે. So I will talk about English, fine, I will talk in English, but at the end of the day my identity will always be as a Gujarati and I will always be proud of that. And that is why I say that it is Vathi Gujarati. ठीक है, अब इतनी सब जितने भी बात कर ली हमने, अब क्या कर सकते हैं? What can we do? Next and the last slide, please. Break the chain. By this I just want to say that हमारे अंदर ये एक जो सोच आई है कि इंप्रेशन पाड़ी हो ना तो इंग्लिश में बात करो, कोई ना व्हाट पढ़िया आवड़ा सॉट्टो पढ़िया इंग्लिश में बात करो. ये चेन को तोड़ना जरूरी है. उसका मतलब ये है कि जब आप किसी अपनी भाषा में बोलने वाले व्यक्ति से मिले तो उनसे अपनी भाषा में बात कीजिए. ये गुजरातियों में खास एक प्रॉब्लम है. गुजराती जब दूसरे गुजराती से मिलेंगे ना तो इंग्लिश में बात करेंगे या हिंदी में बात करेंगे. हमको हिंदी आवड़ता है ऐसा बोल के खड़े रहेंगे, पर पेलो पण गुजराती है, तू पण गुजराती है, तो गुजराती में बात करने प्रॉब्लम શું છે? 2 साल पहले मैं गोवा गया था फैमिली के साथ. ये इन इटसेल्फ एक जोक है, गोवा गया था फैमिली के साथ. तो वहां पे, और दूसरा जोक, हम लोग वहां जाके चाय पी रहे थे गोवा में. तो कुछ लोग साइड में बैठ के बातें कर रहे थे, एंड देयर वर 2 पीपल हु वर टॉकिंग एंड दे वर टॉकिंग इन इंग्लिश, आई थिंक. सो एक
एक बुजुर्ग वहां पर बैठे थे, उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, तो ये दोनों ने कहा कि हम आए हैं नागपुर से। तो अच्छा, नागपुर से आए हैं, नागपुर या कोल्हापुर, सम आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक कोल्हापुर, सॉरी। तो कहाँ से आए? तो बोले हम महाराष्ट्र से आए हैं। तो बोले अच्छा, महाराष्ट्र से आए हैं, तो मराठी में क्यों बात नहीं करते? तो ये लोगों ने बोला कि हाँ काका बराबर है, हम, आप भी मराठी है, हम भी मराठी है, पर हम मराठी में बात नहीं कर रहे क्योंकि अभी हम महाराष्ट्र में थोड़े हैं। तो काका ने बहुत अच्छी बात की, काका ने कहा कि हाँ ठीक है, आप अभी महाराष्ट्र में नहीं है, पर आपके अंदर का मराठी तो कहीं निकला नहीं है ना। आपके अंदर का जो महाराष्ट्र है वो तो आपके अंदर हमेशा रहने वाला है। तो अगर आप सामने वाले जो आपकी भाषा बोल सकता है, उनसे आप अपनी भाषा में बात कीजिए ना। अगर ये हम करेंगे तो कम से कम हमारी जो भाषाएं हैं वो एक और पीढ़ी तक रह पाएंगी, बाकी उसके बाद तो कोई ठिकाना नहीं। सो एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर फोक स्टोरीज, आवर कल्चर, आवर रूट्स, आवर आइडेंटिटी, फॉर द सेक ऑफ दैट, एटलीस्ट जब हम किसी एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो हमारी भाषा में बात कर सकता है, तो हम उनसे हमारी भाषा में बात करें। इंग्लिश में तो हम कभी भी करने ही वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। With this, I come to an end of my presentation. One very final observation I want to share with you guys. कुछ 3 या 4 साल पहले की बात है, जब ये मोबाइल क्रांति शुरू हुई ना, 2012 या 13 की बात है, 3-4 साल, 7 साल के पहले। अभी ऐसा जमाना है, अभी ऐसी हालत है कि everyone has a smartphone. everyone मतलब जो हमारे घर पे काम करते हैं, या द मोस्ट हम्बल प्रोफेशन, जो छोटे से छोटा प्रोफेशन है, उनके पास भी आज एक टच स्क्रीन वाला स्मार्टफोन है, और वो लोग भी इंटरनेट यूज कर रहे हैं, और जो ऊपर के लोग हैं वो तो कर ही रहे हैं। पता है ये जो इतना जो डीप पेनिट्रेशन स्मार्टफोन्स का हुआ, उसके पीछे की वजह क्या है? देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी। जब तक गूगल या जब तक फोन्स एंड्रॉइड पे नॉर्मल फोन्स आ रहे थे, तब तक उसका इतना पेनिट्रेशन नहीं था। ऑब्वियसली फोन सस्ते हुए, इंटरनेट सस्ता हुआ, वो भी एक रीजन है। वन मोर रीजन इज व्हेन गूगल इंट्रोड्यूस द गूगल इंडिक कीबोर्ड। उसका मतलब ये है कि अब हर एक वर्नाक्युलर भाषा में भी आप चैट कर सकते हैं। ये जब इंट्रोड्यूस हुआ स्मार्टफोन्स में, तब से स्मार्टफोन का जो पेनिट्रेशन है वो फिनोमिनल रहा है, क्योंकि नाउ एवरीवन इन अ स्मॉल विलेज आल्सो डज नॉट नीड टू रिलाई ऑन इंग्लिश टू कम्युनिकेट विद समवन एल्स, क्योंकि उसने अपना कीपैड अपनी लोकल लैंग्वेज में बदल के रखा है। सी, दिस इज द पावर ऑफ वर्नाक्युलर। सो दैट इज द रीजन व्हाई वी स्टार्टेड दिस कैंपेन एंड वी सेड कि भाई जितना हो सकता है आप कोशिश कीजिए कि अपनी भाषा में अपने लोगों से कम बात कर सके। इंग्लिश तो सीखना ही है, इंग्लिश तो पढ़ना ही है, इंग्लिश में तो करना ही है, देयर इज वो, उससे तो छुटकारा है ही नहीं। पर जो हमारा है उसे तो हम हमारे पास रखें। Thank you. That was about Vatti Gujarati. Now coming to a very important aspect, which is communication. Communication का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज या सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है कंटेंट। आप क्या बोलने वाले हैं, कैसे बोलने या क्या लिखने वाले हैं, उसके बारे में आपको 100% नॉलेज होना जरूरी। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि पर क्या बोलूं। If you know there is a certain topic, then the things that you can talk about is endless. Abhi you have the power of internet with you. Just one search and you can find out n number of things that you want. Content is very, very, very important. So first, think about what you want to say or write. उसके बारे में जितनी चीजें ढूंढ सकते हैं ढूंढिए, यूनिक चीजें ढूंढिए। उसके बाद the second point is टू बी कॉम्प्रिहेंसिव। आप ऐसी चीजें लिखिए आप सामने वाला आपको समझ सके। सो व्हेन बहुत सारी बार ऐसा होता है कि कोई चीज मुझे पता है पर मैं समझा नहीं पा रहा हूं। आप अगर उसको पहले ठीक से समझेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उसको समझा पाएंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज बी एज कंसाइज एंड एज क्रिस्प एज पॉसिबल। आज जमाना 15 सेकंड के वीडियोस का है। In 50 seconds reel, you have to tell the entire story. Be as to the point and as crisp as possible. जितना लंबा करोगे उतना लोगों का डिसइंटरेस्ट बढ़ेगा, उतना एंगेजमेंट कम होगा।
लोगों को अभी लंबा नहीं चाहिए, लोगों को शॉर्ट में निपटाओ और निकलो, ये चाहिए. फॉर दैट योर कंटेंट हैज टू बी ऑन पॉइंट. अगर आप उसको बिल्डअप ये करेंगे वो करेंगे में रह जाओगे तो कभी डिलीवर नहीं हो पाएगा. कम्युनिकेशन का सबसे इजी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू बी क्रिस्प एंड टू द पॉइंट. फाइनली, when you are communicating, when you are talking, it is very important to understand the lingo. मतलब आज मैं जिस भाषा में एक प्रोफेसर के साथ बात करूंगा और जिस भाषा में मैं अपने दोस्तों के साथ बात करूंगा और जिस भाषा में मैं छोटे बच्चों के साथ बात करूंगा, ये भाषा सेम नहीं होगी. इवन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम टॉपिक, राइट? सो अंडरस्टैंड द लिंगो ऑफ द क्राउड दैट यू आर टॉकिंग टू. तो आपकी जो ऑडियंस है, चाहे अगर आप फॉर एग्जांपल एग्जाम पेपर लिख रहे हैं तो आपकी ऑडियंस नहीं है, आपके कोई एग्जामिनर जो चेक करने वाला है. सो देन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज हैज टू बी दैट वे. इफ यू आर डिलीवरिंग फ्रॉम अ स्टेज, then the language has to be according to the audience. So understand the lingo, upgrade your ideas, and that is how you will be able to connect to the audience. Communication के ये बहुत simple basic principles हैं और आप इसे implement कीजिए and I'm sure you will be able to succeed. Ketki ma'am? Thank you so much, sir. Thank you so much for this informative webinar. And we really got a lot of information, a very enriching information from you. Now, sir, I have got some questions from our students as well as faculties for you regarding this communication and language. So, sir, as we said, as the topic is English, so how important it is to be fluent in English, as we know that it's a language. So one of the question I have got is how important it is to be fluent in English. I mean, a person can speak in English, but he may not be that much fluent. So how difference does it make? How much difference does it make in communication? What is the impact? I understand. So मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई भी भाषा, जिस भी भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं उसमें फ्लुएंट होना बहुत जरूरी. सो अगर आप हिंदी बोल रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से अच्छी हिंदी बोल पाएं. अगर आप गुजराती बोल रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से अच्छी गुजराती बोल पाएं. अगर आप अंग्रेजी बोल रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से अच्छी अंग्रेजी बोल पाएं. क्योंकि जब आप मिस प्रोनाउंस करते हैं, क्या जब आप भाषा का प्रयोग ठीक से नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारी जगहों पर आपका डिवैल्यूएशन हो जाता है, स्पेशली इफ यू आर ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म. If I'm talking about having a chat in my group with my friends, it does not matter what kind of language you're using. But if you are using that language for a formal purpose, then you have to be as fluent or as correct as possible in pronunciations, in diction, in spellings, etc. तो अगर आप फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए पूछ रहे हैं तो इंग्लिश का सही होना बहुत जरूरी है. इंग्लिश में कोई भी भाषा का सही होना बहुत जरूरी है. पर अगर आप उसे नहीं ठीक कर पाते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए. सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है इंग्लिश सीखने में और दूसरी भाषाओं में कि उनका जो ग्रामर है वो बहुत अलग अलग है. सो इन गुजराती, हिंदी एंड इंग्लिश, these three languages have very different grammar. So for example, in Gujarati you have a neutral gender. So મારું પડીકું પડી ગયું, પડીકું પડી ગયું. Padiku is a neutral gender. It does not have a male or a feminine, but you will not be able to say the same in Hindi. तो पढ़ीकू हिंदी में नहीं बोल पाओगे, आप पढ़ी का ही बोलना पड़ेगा. तो वहां पर वो ऑटोमेटिकली या पढ़ी की हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली एक मेल या एक फीमेल जेंडर में चला जाएगा. सो हिंदी और गुजराती में ये मेन कॉम्प्लिकेशन है. द सेम अप्लाइज टू इंग्लिश. सो द ओनली वे टू गेट रिड ऑफ दिस इज टू प्रैक्टिस मोर. आप जितना ज्यादा बोलोगे, जितना ज्यादा सुनोगे, उतना ज्यादा आप उसको सुधार पाओगे. बट टू यूज प्रॉपर लैंग्वेज स्पेशली इन अ फॉर्मल सेटअप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. जितना जल्दी करोगे उतना आपके लिए ही अच्छा. Yes, sir. Sir, one more question I have received is regarding, sir, use of English. Nowadays people are very much using English, Hindi or English ek sath mein. So they find it very like it's a fashion nowadays that youngsters especially are using English together. So how right it is to use English, दो language को mix करके बात करना, वो एक formal communication के लिए कितना सही है?
फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए वो बिल्कुल सही नहीं हो सकता है, पर देखिए अगर इंग्लिश लोग गुजलिश भी यूज करते हैं, गुजराती प्लस इंग्लिश, और बहुत सारी क्या कहते हैं ये जो वेब सीरीज आती है या बहुत सारे जो अलग अलग वीडियोस आते हैं इंटरनेट पे, उन सब में ये लैंग्वेज यूज होती है. सो फॉर इनफॉर्मल लैंग्वेज इट इज परफेक्टली फाइन इफ यू यूज इंग्लिश, if you use a mix of two languages, so it's perfectly okay, it doesn't matter. But if you're writing question paper, if you're writing an examination, if you're making a presentation, अगर आप thesis लिख रहे हैं तो वहां पर ये लैंग्वेज डेफिनेटली नहीं चलेगा. मेरा सिर्फ यही कहना है कि या इंग्लिश हो या बाकी के जितने भी मिक्स लैंग्वेजेस हैं, वो सब तो वैसे भी हम सीखने ही वाले हैं. अगर आप नहीं भी सीखना चाहोगे तो भी आपके दोस्त आपको सिखा देंगे जबरदस्ती, तो उससे तो कभी छुटकारा मिलने वाला है नहीं. तो एज अ स्टूडेंट इट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन पुट एटलीस्ट 5% ऑफ योर एफर्ट इन लर्निंग एनी ऑफ वन लैंग्वेजेस प्रॉपर्ली, so that when you're presenting, when you're saying something, it will only help you. क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो तो वैसे भी आप सीखने ही वाले हो, तो इंग्लिश ही सीख लो या आपकी जो भी दूसरी भाषा है वही सीख लो. Sir, my next question to you is, sir, what do you think? Like, as a country, like we are having so many different languages, and in many of the movies we have seen that English is given a quite more importance when the celebrity or when the actor says that मुझे मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, so I'll speak in English. So it's a status symbol कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है. So, but if your English is not good, then they feel quite less confident, something like this. So what should be done, sir? Because they are public figures. So if they say like this, the general public feels that okay, हिंदी अच्छी नहीं होना सही है, पर English तो अच्छा होना चाहिए. So ये what should be done? करण जौहर का एक शो आता है कॉफी विथ करण, और ऐसे बहुत सारे ऐसे चैट शोज हैं. अब आयरनी देखो, वो करण जौहर का जो शो होता है वो इट टॉक्स टू बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, राइट? सो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज मतलब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सब स्टार्स आते हैं, पर सब बात इंग्लिश में ही करते हैं. सी दिस इज व्हाट वी हैव थॉट अबाउट. ये हमने मन में ऐसा सोच लिया है कि अरे तो क्या है उसमें, नहीं आता तो कोई बात नहीं, इंग्लिश बोल रहे हैं ना, अरे वाह वाह इंग्लिश में बात कर रहे हैं. ये हमने दिमाग में ये सोच के रखा है. कटरीना कैफ वन ऑफ द टॉप 3 एक्ट्रेसेस में भी टॉप 5 एक्ट्रेसेस इन इंडिया, उसको इंग्लिश हिंदी बोलना आता ही नहीं. પણ આપણે જેવું સ્વીકારી લીધું કે આ ચાલે, એમાં શું છે. we have not given enough importance to our languages, and that is the reason why we see कि भाई इंग्लिश इतना, मैं फिर से कहता हूँ कि ऐसा ये कोई कंपटीशन नहीं है कि इंग्लिश आना ही चाहिए या ये अच्छी भाषा है या वो अच्छी भाषा है. भाषाएं सब अच्छी होती है, भाषाएं सब अपने आप में बहुत महान होती है, क्योंकि यही भाषा में से लिटरेचर पैदा होता है, यही भाषा में एक कल्चर होता है. तो भाषा तो बहुत महान होती है, हर एक भाषा महान होती है, पर हम शायद कहीं ये भूल गए हैं कि हमारी अपनी भाषा भी उतनी ही महान है जितनी हम दूसरी भाषा को महत्व देते हैं. आई मीन आपने कितने सारे देखे होंगे इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस हैं, है कि नहीं? कभी आपने ऐसा गुजराती स्पीकिंग क्लासेस सुना है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमको लगता है कि एम शू सीखो, और बहुत सारे लोग तो उसमें प्राइड लेते हैं, मैंने तो बराबर आवड़तु नहीं गुजराती बोलते. अरे यार प्राइड की बात नहीं, तो शर्म आनी चाहिए. अगर आपकी मदर लैंग्वेज, मदर टंग क्यों कहते हैं? वाई इज अ लैंग्वेज कॉल्ड अ मदर टंग? पहली बात तो आप समझिए कि मदर, माँ का जिसको दर्जा हमने दिया है, वो भाषा हम अगर नहीं सीख पा रहे हैं, उसका मतलब है कि हम अपनी माँ से बेवफाई कर रहे हैं. अगर किसी भाषा को माँ का दर्जा दिया गया है और अगर हम उसे इग्नोर कर रहे हैं तो हम तो कपूत हुए, उसका मतलब, ना कि सपूत. सो फॉर दैट इट इज अ शेम ऑन अस दैट वी थिंक अरे भाई इंग्लिश आ गया तो दुनिया में सब कुछ आ गया. हमारी जो भाषा है, हमारी जो पहचान है, वो हम नहीं सीखेंगे तो कौन सीखेगा? और इसीलिए ये जितना भी हम बॉलीवुड में देखते हैं या मूवीज में देखते हैं, वो इसीलिए हम इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारा ही एक प्रतिबिंब है. मूवीज में वही दिखाया जाता है जो समाज में होता है. समाज में किसी को नहीं पड़ी है अपनी भाषा की, तो फिर वहां पे थैंकफुली नाउ एटलीस्ट वर्नैकुलर क्या कहते हैं, मूवीज, गाने थोड़े बहुत अभी बन रहे हैं. बाकी गुजराती इंडस्ट्री तो एक टाइम ऐसा था कि खत्म हो चुका. पिछले 10 एक साल से कम कुछ उसमें अच्छा काम हो रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है.
So my only, what I always try to say is that don't be embarrassed or ashamed of your language. It is your identity. आप उसे गर्व से आप कहिए जो भी भाषा में आप बात करते हैं। अंग्रेजी सीखिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, सीखना मना नहीं है, सीखना ही। फ्रेंच सीखिए, जर्मन सीखिए, जो भाषा सीखनी है सीखिए, पर अपनी भाषा को छोड़ के नहीं। जी मैम। Yes, sir. Sir, that reminds me of one of the things we have seen in a movie called Hindi Medium. The actor says that if a French person cannot speak English, it's okay. A German can't speak English, it's okay. But if an Indian cannot speak English, it's a shame. So we have to change this mentality that it is just a language and every language is equally important. And language can be so learned. that's the most important thing is कि कोई भी किसी भी भाषा को आप सीख सकते हो, उसमें कुछ it's not difficult. I mean, for them, वो लोग ऐसा जैसे अगर आपको आज अगर कनाडा जाना है तो वो लोग सबसे पहले आपको पूछेंगे IELTS का स्कोर क्या है, क्योंकि उन लोग को चाहिए कि भाई, क्योंकि वो उनकी भाषा है ना, इंग्लिश, वो कनाडा की, यूएस की वो मेन लैंग्वेजेस है, तो हमारी भाषा आपको आती है कि नहीं, उसके बाद ही हम आपको वीजा देंगे। बाकी इंडिया में कभी कोई वीजा के लिए अप्लाई करेगा, कोई नहीं पूछता कि तुम्हें हिंदी आवड़े जाएगा, नहीं, आ जाओ हमारे सब भाग्य तो अंग्रेजी में चलाई, राइट। सो it is very evident that all of the other countries कितने भी डेवलप्ड हुए हो, मैंने जैसे कहा कि अगर आप जापान में जाके इंग्लिश में बात करने की कोशिश करोगे तो आधे लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, आधे लोग क्या, मैक्सिमम लोग समझ नहीं पाएंगे। चाइना में अगर आप जाके इंग्लिश में बात करेंगे तो वो लोग अगर समझ भी पाएंगे तो दे विल नॉट रिस्पॉन्ड टू यू, बिकॉज दे थिंक कि भाई हमारे यहाँ आए हैं तो हमारी भाषा में बात करो, क्या प्रॉब्लम है। It is important if you want to go to any European country, अगर आपको पढ़ने या सेटल होने वहां जाना है तो सबसे पहले वहां की भाषा सीखनी पड़ेगी, स्पेनिश सीखना पड़ेगा, फ्रेंच सीखनी पड़ेगी, जर्मन सीखना पड़ेगा, तभी आप जा पाओ, बिकॉज दे वैल्यू देयर कल्चर, दे वैल्यू देयर लैंग्वेज सो मच, एंड वी डोंट। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश आ गया तो आप दुनिया में कहीं भी जा सकते, पॉसिबल ही नहीं। कैसे? Sir, once again coming back to the same thing of going overseas, in one of the movies I saw, it was that the lead actor was going abroad, and he was saying like at the visa counter, the person was saying that how will you manage in our country, you don't know English, you don't know English. So the other person who was an Indian at the same office, he says that the way you people are managing in our country without knowing Hindi. So it is okay for the foreigners to enter in our country without knowing Hindi, but if we want to move abroad, then we need to know English, and that's a taboo, I can say. सही बात है, पर ये धीरे धीरे चेंज होगा, मुझे ऐसा लगता है। और किसी भी भाषा में बात करें, भाषा को ठीक से यूज करें। बाकी इंग्लिश तो है ही, इंग्लिश तो आप सीखने ही वाले हो, whether we like it or not, when we have children and they will go to school, वो इंग्लिश में ही सीखने वाले हैं। ये एक कॉमन क्वेश्चन मुझे भी बहुत सारे लोगों ने पूछा है, जो मैं यहाँ पर खास मेंशन करना चाहता हूँ कि अगर मुझे ऐसा कहे कि आपके बच्चों को आप कौन से मीडियम के स्कूल में रखोगे, इंग्लिश मीडियम के स्कूल में रखोगे या गुजराती मीडियम के स्कूल में रखोगे? बहुत पेचीदा सवाल है ये सब बोलना बहुत आसान है, बट जब करने की बात आती है तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दैट द ओनली प्रॉब्लम इज एजुकेशन सिस्टम में हमारी जो वर्नैकुलर स्कूल्स है ना, वो लोगों ने पहले ही हार मान ली। अगर हमारी वर्नैकुलर स्कूल्स एज गुड एज इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होंगी तो ज्यादा लोग वर्नैकुलर मीडियम में भी रखने की कम से कम पहल करेंगे, कम से कम सोचेंगे। पर अभी होता ही है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इतनी ज्यादा एडवांस्ड हो चुकी है क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा लोग जा रहे हैं, तो इट इज बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई। तो वहां ज्यादा लोग जा रहे हैं तो वहां पर वो लोग इतने अपग्रेड हो गए हैं अपनी लैब्स या प्लेग्राउंड या ऑल दी अदर करिकुलर एक्टिविटीज। गुजराती मीडियम बेचारी वो पीछे आ जाती है, वो अपने अपने अंदर, नॉट ओनली गुजराती मीडियम, अदर मीडियम स्कूल्स ऑल्सो। सो इफ वर्नैकुलर मीडियम स्कूल्स ऑल्सो स्टार्ट अपग्रेडिंग देमसेल्व्स, आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों को वर्नैकुलर स्कूल्स में भी डालने के लिए तैयार होंगे। आई थिंक मैम वी आर अबाउट टू reach to 12:30. Are there any questions that we want to take?
or should we? Sir, we are almost through the webinar. Just one last question to you, sir. Sir, as you have explored so many cities, so many countries, so what is the basic thing, like as you said during the webinar also, what is the basic learnings our students can learn? Because as you have told that every country has got its own charm, and every country like Japan, China, they value their languages. So how to inculcate this kind of attitude among our kids since childhood? Like, people are nowadays understanding that yes, it is important to learn our mother tongue also. So how to make students or kids understand that it's okay, it's not a big deal if you can't speak in English. It will not lessen down your confidence. It's okay if you are good in Hindi, Marathi, or any other language. So मुझे ऐसा लगता है कि हमारी भाषाओं को जितना एक्सपोजर मिलना चाहिए उतना एक्सपोजर मिलता नहीं इन टर्म्स ऑफ से पब्लिक स्पीकिंग, गोइंग इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल एंड टॉकिंग, डिबेट्स. आपने देखा होगा कि अक्सर जब हम डिबेट करते हैं तो डिबेट इंग्लिश में ही होनी चाहिए, एलोक्यूशन करते हैं तो इंग्लिश में ही होना चाहिए. उसको कहीं ना कहीं हटाने की जरूरत है. फॉर स्टूडेंट्स आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल. अगर आप अपने, जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स में ही ये आता है कि आपका कंटेंट कैसा है और आप कितने कोहेरेंट हैं. उसका मतलब है कि आप अपने जो थॉट्स हैं उसको वर्ड्स में कितने इफेक्टिवली डाल सकते हैं. नाउ इट डज नॉट मैटर कि अगर आप वो वर्ड्स में आप हिंदी में डाल पाते हैं या जो भी भाषा में डाल पाते हैं, बट ट्राई एंड पुट देम आउट. जितना आप ज्यादा बोलेंगे, जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा. नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, you know, everyone has a fantastic platform of digital media. पहले कैसा था कि अगर किसी को सिंगर बनना है फॉर एग्जांपल तो आकाशवाणी में जाना पड़ता था. आकाशवाणी अगर आपको चांस देगी तब आप सिंगर बन पाओगे. उसके पहले आप सिंगर नहीं कहलाओगे, या यू विल नॉट बी इन द कैटेगरी ऑफ बीइंग अ सिंगर. इफ यू वांटेड टू बिकम एन एक्टर यू हैव टू गो टू television and request for a role. Yeah, you have to go to movies. But now is not the case. So now you can be whoever you want to be just by the power of social media. You have Instagram, you have Facebook, you have YouTube and so many other platforms. अगर आपका कंटेंट अच्छा है, चाहे वो कोई भी भाषा में हो, तो लोगों तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा. सो ट्राई पुटिंग आउट. बहुत सारी बार हम सेल्फ क्रिटिकल हो जाते हैं कि आऊ मुका यार, आऊ नहीं मुकू यार, आऊ क्यों लागे, कोई शू कैसे. ये सोचना बंद कर दीजिए. आपके दिमाग में अगर कोई आइडिया है, कोई सोच है, कोई विचार है, अगर आपको लगता है कि यू वांट टू शेयर दिस विद द वर्ल्ड, गो अहेड एंड पुट इट आउट. अगर वो अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे. जितना आप ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, जितना ज्यादा आप अपना कंटेंट, चाहे कोई भी भाषा में हो, किसी भी तरीके का हो, जितना ज्यादा आप डालने लगेंगे, लोगों तक पहुंचने लगेगा, उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. और उसमें अगर कुछ गलतियां या खामियां हैं तो भी आपको पता चलेगा. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू पॉलिश, you will be able to nurture your own skill or your talent. But for that you have to start using it. आप अपने स्किल्स को तभी शार्पन कर पाएंगे जब आपको पता चलेगा कि कौन सी स्किल आपने नहीं है, और वो तभी आपको पता चलेगा जब आप उसको यूटिलाइज करेंगे. अब आप खेल के मैदान में अगर उतरेंगे ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप फुटबॉल के ग्राउंड में अगर उतरेंगे ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप फ्रंट में खेल सकते हैं, या मिड में खेल सकते हैं, या बैक में खेल सकते हैं, या गोलकीपर बन सकते हैं. उसके लिए आपको क्रिकेट, फुटबॉल के मैदान में उतरना पड़ेगा, क्रिकेट के मैदान में जाना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि आप बॉलर अच्छे बन सकते हैं, बैट्समैन अच्छे बन सकते हैं, विकेट कीपर अच्छे बन सकते हैं, कोच अच्छे बन सकते हैं. क्या कुछ भी नहीं कर सकते, चलो दूसरा कुछ करते हैं. बट फॉर दैट यू हैव टू ट्राई डूइंग. अ लॉट ऑफ टाइम्स वी होल्ड आवरसेल्व्स बैक थिंकिंग कि ये मेरे से नहीं होगा, या ये मुझे नहीं करना है, लोग क्या कहेंगे, कोई क्या सोचेगा. उसको साइड में रखिए. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा गा सकते हैं, अच्छी कविताएं बोल सकते हैं, whatever it is, अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, then start doing it. Once you do it, your confidence will automatically improve. And if it does not work out, don't be overconfident. That's also a harsh fact of our lives. अगर वर्कआउट नहीं होता है तो gladly सोचिए कि ठीक है, कुछ और ट्राई करेंगे. Okay, sir. So with this, I'd like to extend my thanks to you, sir. Our gratitude of thanks to you. Thank you so much, sir, for giving your valuable time to us and to our students. It was lovely having you here. It was a pleasure.
And thank you so much for this informative and very fantastic webinar. So once again, धन्यवाद. बहुत बड़ा शुक्रिया सर हमारी तरफ से. Thank you. And, और to all उम्मीद है students, yes. Thank you, ma'am. Sorry to interrupt, but to all the students, I'm always available on social media. Anytime, anything that you want to put across, share, ask, whatever it is, feel free to ping me. I'll always reply. Thank you. श्योर सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू वंस अगेन. एंड उम्मीद है आने वाले समय में और आपके साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शंस होंगे. जी, थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू केतकी मैम. थैंक यू शांतनु सर. एंड थैंक यू PU. थैंक यू सर. Bye. हैव अ नाइस डे. बाय. You too.